یہ سوچنا نہیں ہے کہ بھئی پیچھے کوئی خدا ہے وہ آپ کو جہنم میں آپ کے ساتھ پتہ نہیں کیا کچھ کرے گا. مطلب وہ ایک قسم کا فریڈم ہے, آپ کا مائنڈ ہلکا ہو جاتا ہے. میرا مائنڈ بالکل ہلکا ہو گیا. لوگوں نے میرے ایریا میں میری طرف دیکھنا ہی چھوڑ دیا. میں بہت خوش ہوں کہ میں نے اسلام چھوڑا. میرے میں کوئی ریگریشن نہیں اس میں کہ میں نے کیوں کیا. میں آج انسانیت کو مانتی ہوں, ہیومینٹی اور اسپرچویلٹی بہت زیادہ ان دو میں. تم مسلمان نہیں ہو تو یہ نام بدل دو. تو مزے کی بات یہ ہے ایمبر جی, اب جب میں نے اپنا نام انڈیا سرسوتی جولی رکھا ہے, اب ان کو پرابلم ہو رہا ہے کہ اس نے یہ نام کیوں رکھا ہے. اس پہ جا کے لنکڈ ان, فیس بک, یوٹیوب, جتنے ایکس مسلم نے ایک نے ویڈیو بنایا تھا اس کا ویڈیو دیکھ کے, سو اٹ ڈڈ گو اینڈ افیکٹ می کہ نہیں, میرا جو یہ چوائس ہے اسلام چھوڑنے کا یہ بالکل صحیح ہے. اللہ مجھ سے کوئی خفا نہیں ہوگا کیونکہ اللہ ہے ہی نہیں. تو دوستوں, میں امبر زیدی اور سواگت ہے آپ سب کا ہمارے آج کے خاص کارکرم اٹس ڈیبیٹیبل میں. اور جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ ایکس مسلم پر میں ایک سیریز کر رہی ہوں, اور اسی کڑی میں آج ہمارے ساتھ ایک بہت ہی خاص شخصیت جڑی ہے جن کو آپ امینہ سردار کے نام سے بھی جانتے ہیں, اور حال ہی میں انہوں نے اپنا نام بھی بدلا ہے سرسوتی جولی. تو آج ہم ان سے بات کریں گے کہ کیوں انہوں نے اسلام چھوڑا. نمسکار, بہت بہت سواگت ہے آپ کا. نمستے, نمسکار, شلوم, ہیلو, ہائی آپ سب لوگوں کو. اینڈ ایمبر جی, تھینک یو فار ہیونگ می. شکریہ آپ کا. شکریہ آپ کا کہ آپ آئیں. اور سب سے پہلے میرا سوال آپ سے یہ ہے کہ آپ نے اسلام کیوں چھوڑا, کیا وجہ تھی کہ آپ کو اسلام چھوڑنا پڑا؟ فرسٹ آف آل ایمبر, میرا تو کوئی ارادہ ہی نہیں تھا اسلام چھوڑنے کا. مزے کی بات تو یہ ہے, فرسٹ آف آل جب یہ میرا جو کہتے نہیں ہے ایک دھیان تھوڑا سا گیا اسلام اور مسلمانوں کی طرف دونوں, وہ تھا جب میرے ملک میں اسکینڈینیویا میں ایک نے محمد کی میسنجر محمد کی ڈرائنگ کی تو گاڑیاں جلی تو برا اثر ہوا. تو میں مسلمان ہوتے ہوئے میں نے بیٹھ کے سوچا کہ یہ کیا ہو رہا ہے, یہ کیوں ہو رہا ہے, ان کو تو کرنا نہیں چاہیے ریگارڈلیس. خیر وہ ایک سوچ تھا, کہتے نہیں دانا چلے جاتا ہے دماغ میں. اس کے بعد جو ہے جب میں فیس بک پہ آئی کافی سالوں بعد, تو میں نے دیکھا کہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ محمد جو ہے وہ پیڈوفائل ہے. تو میں نے کہا یہ کیا بول رہے ہو تم لوگ کہ وہ پیڈوفائل ہے, کہاں لکھا ہے کہ وہ پیڈوفائل ہے, مطلب ان دا سینس کہ اس نے بچی کے ساتھ شادی کی ہے. تو انہوں نے کہا تمہارے حدیثوں میں لکھا ہے. میں نے کہا حدیث پھر کیا ہے؟ اب جب میں سارا ریفرنس لے کے گھر گئی, میں نے کہا یہ کیا حدیث ہے, از اٹ ریئل؟ تو سب سے پہلے پتا چلا کہ یس, یہ حدیث ایگزسٹ کرتا ہے, اور صحیح البخاری, صحیح مسلم, دے آر آتھینٹک. تو جب یہ کنفرم ہوا تو میں نے کہا میں نے ان حدیثوں کو نہیں ماننا, بیکاز دے آر ڈرٹی, دے آر بلاسفیمک ٹورڈز میسنجر محمد. دیٹ واز دا ٹائم کہ میں نے حدیثوں کو لے کے اپنے ہاتھوں سے مطلب دھو دیا اس کو. اٹ واز اراؤنڈ آئی تھنک 2016 پلس مائنس ایسے کچھ تھا. وہ میں نے ادھر ختم کر دیا. شاید اس سے پہلے کی بھی بات ہوگی یہ, مگر خاص اراؤنڈ 2016 آئی تھنک پلس مائنس, اور اس سے تھوڑا سا پہلے کیا ہوا کہ میں کسی کو جانتی ہوں, وہ ایکس مسلم ہے, بہت ویری ڈیئر فرینڈ آف مائن. تو اس نے مجھے کہا کہ میں نے اسلام چھوڑ دیا. میں نے سوچا اسلام چھوڑ دیا, میں نے کہا کیوں؟ کہتی ہے حج پہ جا کے میں نے چھوڑا ہے. ارے میں نے کہا یہ حج پہ جا کے تو انسان اللہ کے نزدیک ہوتا ہے, تو آپ نے, میں نے کہا تم نے چھوڑ کیسے دیا؟ تو اس نے مجھے کچھ وجوہات بتائے, تو میں وہ میرا نا ادھر دماغ میں پھنس گیا. ناؤ آئی وانٹڈ, میں چاہتی تھی کہ میں اس کو بھی پروف کروں کہ وہ غلط ہے, میں صحیح ہوں, کہ اسلام میں یہ چیز نہیں ہے. خیر میں اپنی اس جرنی میں نکل گئی کہ اس کو پروف کروں کہ دیکھو تمہارا یہ تھیوری صحیح نہیں ہے, دیکھو یہ اس طرح سے ہے, اور اسلام میں یہ سب کچھ ہے, اور اس طرح سے ایوری تھنگ از اویلیبل. مگر جتنا میں قرآن میں جاتی گئی, جتنا ڈوبتی گئی, ایسے کچھ سامنے آئے چیزیں جس چیز سے میں ریڈی نہیں تھی. آئی واز لائک کمپلیٹلی بیفلڈ. میں نے کہا یہ کیا ہو رہا ہے. میں حج کے اوپر آ رہی تھی, حج کے اوپر ایمبر جی قرآن میں کچھ کلیئر نہیں لکھا کہ کتنا آپ نے چکر مارنا ہے خانہ کعبہ کے, کیا اس کے مطلب کیا کیا چیزیں کرنی ہے خانہ کعبہ جا کے, کچھ نہیں لکھا. نماز کے بارے میں کچھ کلیئر نہیں لکھا, روزوں کے بارے میں کچھ کلیئر نہیں لکھا,
basically bits and pieces डाली हुई है, and then nothing is clear. And then I realized everything जो थोड़ा बहुत जो लिखा भी है pieces by pieces हदीसों में लिखा हुआ है, पूरा in one go नहीं लिखा, उधर भी pieces and pieces में लिखा हुआ है. तो जब ऐसे चीज मैंने पढ़ना शुरू किया, दूसरे प्लेटफॉर्म्स पे गई, तो एकदम से मुझे ऐसी चीजें आने लगी सामने जैसे कि इस्लाम सही है नहीं, वो इस्लाम नहीं है जो मैं समझती थी, अल्लाह मर्सीफुल नहीं है जो मैं समझती थी, अल्लाह ऑल नोइंग नहीं है जैसे मैं समझती थी, अल्लाह गफूर रहीम नहीं है जैसे मैं समझती थी, लेडीज के हकूक नहीं है जैसे मैं समझती थी, इस्लाम में इंसानियत नहीं है जैसे मैं समझती थी. मैंने अंबर जी अपना एक इमेजिनेटरी वो इस्लाम बना के रखा हुआ था मैंने, एज अ extreme liberal Muslim, moderate Muslim. But I realized that is not the reality. चाहे मैंने कितना उसको टाइट क्यों ना पकड़ा हो, मगर वो रियलिटी है ही नहीं. So in the beginning of 2020 January मैंने डिसाइड किया कि I'm gonna leave. और मैं बहुत 4 साल तकरीबन मैंने लगाए थे प्लस माइनस, मगर वो इतना मजबूत हो चुका था मुझ में कि वो इधर से उधर हो नहीं सकता था, इतना पक्का हो गया था, क्योंकि मैंने इतने प्लेटफॉर्म्स पे जाके लिंक्डइन, फेसबुक, यूट्यूब, जितने एक्स मुस्लिम ने एक वीडियो बनाया था उसका वीडियो देख के, सो इट डिड गो एंड अफेक्ट मी कि नहीं, मेरा जो ये चॉइस है इस्लाम छोड़ने का ये बिल्कुल सही है, अल्लाह मुझसे कोई खफा नहीं होगा क्योंकि अल्लाह है ही नहीं. तो ऑल द डाउट्स दैट वर देयर, कोई भी जो सोच था वो सारा क्लियर हो गया. आसमान कहते नहीं जैसे साफ हो जाता है, ऐसे पूरा साफ हो गया. और जनवरी 2020 के फर्स्ट वीक में मैंने छोड़ा. बट एम्बर आई वाज रियली क्राइंग, बहुत रो रही थी मैं उस दिन, अकेला फील किया मैंने रात के 12 बजे अपने आप को, नॉट बिकॉज जस्ट अकेला बट बिट्रेड, कि मैंने इस पे इतना यकीन किया इतने साल, एंड आई ट्रस्टेड, मैंने अल्लाह पे इतना एतबार किया, एंड नो वंडर कि अल्लाह मेरे रेस्क्यू के लिए कभी नहीं आता था जब मैं तकलीफ में होती थी. तो छोड़ के बहुत अच्छा हुआ मेरे लिए, आई फेल्ट वेरी मच रिलीफ चंद दिन बाद. आपके अंदर जब ये सवाल उठ रहे थे तो आपने किसी आलिम या किसी से इन सवालों को, अपने इनके सवालों के जवाब लेने की कोशिश की कि जो सवाल उठ रहे हैं आपके अंदर? मैं पहले, आप यकीन करो, इट इज सो फार आउट, पहले मैं डॉक्टर साले जो कि भी एक इमाम है, बहुत वेल नोन ऑनलाइन, और जाकिर नाइक, आई कांट बिलीव आई एम सेइंग दिस, जाकिर नाइक को फॉलो करती थी, मुफ्ती मेंग शेख को फॉलो करती थी, खास तौर पे जाकिर नाइक, लाइक यू नो ही हैड ऑल द आंसर्स, जबरदस्त आंसर होता था. मगर जब मैंने ये जर्नी शुरू की तो मैंने अपने आप को कहा मैं किसी मुल्ला मुफ्ती को नहीं सुनूंगी, किसी को भी नहीं सुनूंगी, ये मैं बिल्कुल कहते नहीं न्यूट्रल होके मैं मालूम करूंगी कि मेरा इस्लाम क्या है. और मेरा तो सबसे पहले एम्बर जी इरादा नहीं था छोड़ने का, जब भी ये, बिकॉज आई वांटेड टू लर्न टू टेल माय फ्रेंड, कि अपने दोस्त को बताऊं कि भाई इस्लाम ऐसे, मगर मुझे किसी मुल्ला की इंटरफेरेंस नहीं चाहिए थी, मुझे खुद करना था. मैं खुद भी तो आखिर मुसलमान थी, मैंने कहा मुझे आना चाहिए, मुझे एक मुफ्ती की, क्योंकि एक मुफ्ती, 4 मुफ्ती की 4 जुबान, तो मैंने कहा मैंने मुफ्ती से नहीं करना, मैं खुद मुसलमान हूँ, मुझे अपने दीन के बारे में पता होना चाहिए. तो जब मैंने ये रास्ता थामा तो पता चला कि भाई तू तो रास्ते से ही निकल रही है. रात को बैठ के कहती थी अल्लाह मुझे रास्ता दिखा, ये कहती थी एम्बर कि अल्लाह मुझे रास्ता दिखा, मुझे सच्चाई दिखा. ये सोचना नहीं है कि भाई पीछे कोई खुदा है, वो आपको जहन्नुम में आपके साथ पता नहीं क्या कुछ करेगा, मतलब वो एक किस्म का फ्रीडम है, आपका माइंड हल्का हो जाता है. मेरा माइंड बिल्कुल हल्का हो गया, लोगों ने मेरे एरिया में मेरी तरफ देखना ही छोड़ दिया. मैं बहुत खुश हूँ कि मैंने इस्लाम छोड़ा, मेरे में कोई रिग्रेशन नहीं इसमें कि मैंने क्यों किया. मैं आज इंसानियत को मानती हूँ, ह्यूमैनिटी और स्पिरिचुअलिटी बहुत ज़्यादा इन दो में. तो मुसलमान नहीं हो तो ये नाम बदल दो. तो मज़े की बात ये है एम्बर जी, अब जब मैंने अपना नाम इंडिया सरस्वती जोली रखा है, अब उनको प्रॉब्लम हो रहा है कि इसने ये नाम क्यों रखा है. उस पर जाके लिंक्डइन, फेसबुक, यूट्यूब, जितने एक्स मुस्लिम ने एक वीडियो बनाया था उसका वीडियो देख के, सो इट डिड गो एंड अफेक्ट मी कि नहीं, मेरा जो ये चॉइस है इस्लाम छोड़ने का ये बिल्कुल सही है, अल्लाह मुझसे कोई खफा नहीं होगा क्योंकि अल्लाह है ही नहीं. तो
नमस्कार दोस्तों, मैं अंबर जैदी और स्वागत है आप सबका हमारे आज के खास कार्यक्रम इट्स डिबेटेबल में। और जैसा कि आप सब जानते हैं कि एक्स मुस्लिम पर मैं एक सीरीज कर रही हूँ और उसी कड़ी में आज हमारे साथ एक बहुत ही खास शख्सियत जुड़ी है जिनको आप अमीना सरदार के नाम से भी जानते हैं और हाल ही में उन्होंने अपना नाम भी बदला है, सरस्वती जोली। तो आज हम उनसे बात करेंगे कि क्यों उन्होंने इस्लाम छोड़ा। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्ते, नमस्कार, शलोम, हेलो, हाय आप सब लोगों को। एंड एम्बर जी, थैंक यू फॉर हैविंग मी, शुक्रिया आपका। शुक्रिया आपका कि आप आई। और सबसे पहले मेरा सवाल आपसे ये है कि आपने इस्लाम क्यों छोड़ा, क्या वजह थी कि आपको इस्लाम छोड़ना पड़ा? फर्स्ट ऑफ ऑल एम्बर, मेरा तो कोई इरादा ही नहीं था इस्लाम छोड़ने का। मजे की बात तो ये है, फर्स्ट ऑफ ऑल जब ये मेरा जो कहते नहीं है एक ध्यान थोड़ा सा गया इस्लाम और मुसलमानों की तरफ, दोनों, वो था जब मेरे मुल्क में स्कैंडिनेविया में एक ने मोहम्मद की, मैसेंजर मोहम्मद की ड्राइंग की, तो गाड़ियां जली तो बुरा असर हुआ। तो मैं मुसलमान होते हुए मैंने बैठ के सोचा कि ये क्या हो रहा है, ये क्यों हो रहा है, इनको तो करना नहीं चाहिए रिगार्डलेस। खैर, वो एक सोच था, कहते नहीं दाना चले जाता है दिमाग में। उसके बाद जो है जब मैं फेसबुक पे आई काफी सालों बाद, तो मैंने देखा कि लोग कह रहे हैं कि मोहम्मद जो है वो पेडोफाइल है। तो मैंने कहा ये क्या बोल रहे हो तुम लोग कि वो पेडोफाइल है, कहाँ लिखा है कि वो पेडोफाइल है, मतलब इन द सेंस कि उसने बच्ची के साथ शादी की है। तो उन्होंने कहा तुम्हारे हदीसों में लिखा है। मैंने कहा हदीस फिर क्या है। अब जब मैं सारा रेफरेंस लेके घर गई, मैंने कहा ये क्या हदीस है, इज इट रियल। तो सबसे पहले पता चला कि यस, ये हदीस एग्जिस्ट करता है और सही अल बुखारी, सही मुस्लिम, दे आर ऑथेंटिक। तो जब ये कंफर्म हुआ तो मैंने कहा मैंने इन हदीसों को नहीं मानना, बिकॉज दे आर डर्टी, दे आर ब्लास्फेमिक टुवर्ड्स मैसेंजर मोहम्मद। दैट वाज द टाइम कि मैंने हदीसों को लेके अपने हाथों से मतलब धो दिया उसको। इट वाज अराउंड आई थिंक 2016 प्लस माइनस ऐसे कुछ था, वो मैंने उधर खत्म कर दिया। शायद उससे पहले की भी बात होगी ये, मगर खास अराउंड 2016 आई थिंक प्लस माइनस, और उससे थोड़ा सा पहले क्या हुआ कि मैं किसी को जानती हूँ, वो एक्स मुस्लिम है, बहुत वेरी डियर फ्रेंड ऑफ माइन। तो उसने मुझे कहा कि मैंने इस्लाम छोड़ दिया। मैंने सोचा इस्लाम छोड़ दिया, मैंने कहा क्यों। कहती है हज पे जाके मैंने छोड़ा है। अरे मैंने कहा ये हज पे जाके तो इंसान अल्लाह के नजदीक होता है, तो आपने, मैंने कहा तुमने छोड़ कैसे दिया। तो उसने मुझे कुछ वजूहात बताए, तो मैं वो मेरा ना इधर दिमाग में फंस गया। नाउ आई वांटेड, मैं चाहती थी कि मैं उसको भी प्रूव करूं कि वो गलत है, मैं सही हूं, कि इस्लाम में ये चीज नहीं है। खैर, मैं अपनी इस जर्नी में निकल गई कि उसको प्रूव करूं कि देखो तुम्हारा ये थ्योरी सही नहीं है, देखो ये इस तरह से है और इस्लाम में ये सब कुछ है और इस तरह से एवरीथिंग इज अवेलेबल। मगर जितना मैं कुरान में जाती गई, जितना डूबती गई, ऐसे कुछ सामने आए चीजें जिस चीज से मैं रेडी नहीं थी। आई वॉज लाइक कंप्लीटली बैफल्ड। मैंने कहा ये क्या हो रहा है। मैं हज के ऊपर आ रही थी, हज के ऊपर एम्बर जी कुरान में कुछ क्लियर नहीं लिखा कि कितना आपने चक्कर मारना है खाने काबा के, क्या उसके मतलब क्या क्या चीजें करनी है खाने काबा जाके, कुछ नहीं लिखा। नमाज के बारे में कुछ क्लियर नहीं लिखा, रोजों के बारे में कुछ क्लियर नहीं लिखा। बेसिकली बिट्स एंड पीसेस डाली हुई है एंड देन नथिंग इज क्लियर। एंड देन आई रियलाइज्ड एवरीथिंग जो थोड़ा बहुत जो लिखा भी है पीसेस बाय पीसेस हदीसों में लिखा हुआ है, पूरा इन वन गो नहीं लिखा, उधर भी पीसेस इन पीसेस में लिखा हुआ है। तो जब ऐसे चीज मैंने पढ़ना शुरू किया, दूसरे प्लेटफॉर्म्स पे गई, तो एकदम से मुझे ऐसी चीजें आने लगी सामने जैसे कि इस्लाम सही है नहीं, वो इस्लाम नहीं है जो मैं समझती थी। अल्लाह मर्सीफुल नहीं है जो मैं समझती थी। अल्लाह ऑल नोइंग नहीं है जैसे मैं समझती थी। अल्लाह गफूर रहीम नहीं है जैसे मैं समझती थी। लेडीज के हकूक नहीं है जैसे मैं समझती थी। इस्लाम में इंसानियत नहीं है जैसे मैं समझती थी। मैंने अंबर जी अपना एक इमेजिनेटरी वो इस्लाम बना के रखा हुआ था मैंने, एज अ एक्सट्रीम एक्सट्रीम लिबरल मुस्लिम, मॉडरेट मुस्लिम। बट आई रियलाइज दैट इज नॉट द रियलिटी। चाहे मैंने कितना उसको टाइट क्यों ना पकड़ा हो, मगर वो रियलिटी है ही नहीं। सो इन द बिगिनिंग ऑफ 2020 जनवरी मैंने डिसाइड किया कि आई एम गोना लीव। और मैं बहुत मतलब 4 साल तकरीबन मैंने लगाए थे प्लस माइनस, मगर वो इतना मजबूत हो चुका था मुझ में कि वो इधर से उधर हो नहीं सकता था।
इतना पक्का हो गया था क्योंकि मैंने इतने प्लेटफॉर्म्स पे जाके लिंक्डइन, फेसबुक, यूट्यूब, जितने एक्स मुस्लिम ने एक ने वीडियो बनाया था उसका वीडियो देख के, सो इट डिड गो एंड अफेक्ट मी कि नहीं, मेरा जो ये चॉइस है इस्लाम छोड़ने का ये बिल्कुल सही है, अल्लाह मुझसे कोई खफा नहीं होगा क्योंकि अल्लाह है ही नहीं। तो ऑल द डाउट्स दैट वर देयर, कोई भी जो सोच था वो सारा क्लियर हो गया। आसमान कहते नहीं जैसे साफ हो जाता है, ऐसे पूरा साफ हो गया। और जनवरी 2020 के फर्स्ट वीक में मैंने छोड़ा। बट एम्बर, आई वाज रियली क्राइंग, बहुत रो रही थी मैं उस दिन। अकेला फील किया मैंने रात के 12 बजे अपने आप को, नॉट बिकॉज जस्ट अकेला बट बिट्रेड, कि मैंने इस पे इतना यकीन किया इतने साल, एंड आई ट्रस्टेड, मैंने अल्लाह पे इतना एतबार किया, एंड नो वंडर कि अल्लाह मेरे रेस्क्यू के लिए कभी नहीं आता था जब मैं तकलीफ में होती थी। तो छोड़ के बहुत अच्छा हुआ मेरे लिए, आई फेल्ट वेरी मच रिलीफ चंद दिन बाद। आपके अंदर जब ये सवाल उठ रहे थे तो आपने किसी आलिम या किसी से इन सवालों को, अपने इनके सवालों के जवाब लेने की कोशिश की कि जो सवाल उठ रहे हैं आपके अंदर? मैं पहले, आप यकीन करो, इट इज सो फार आउट, पहले मैं डॉक्टर साले जो कि भी एक इमाम है, बहुत वेल नोन ऑनलाइन, और जाकिर नाइक, आई कांट बिलीव आई एम सेइंग दिस, जाकिर नाइक को फॉलो करती थी, मुफ्ती मेंग शेख को फॉलो करती थी, खास तौर पे जाकिर नाइक, लाइक यू नो ही हैड ऑल द आंसर्स, जबरदस्त आंसर होता था। मगर जब मैंने ये जर्नी शुरू की तो मैंने अपने आप को कहा मैं किसी मुल्ला मुफ्ती को नहीं सुनूंगी, किसी को भी नहीं सुनूंगी, ये मैं बिल्कुल कहते नहीं न्यूट्रल होके मैं मालूम करूंगी कि मेरा इस्लाम क्या है। और मेरा तो सबसे पहले एम्बर जी इरादा नहीं था छोड़ने का, जब भी ये, बिकॉज आई वांटेड टू लर्न टू टेल माय फ्रेंड, कि अपने दोस्त को बताऊं कि भाई इस्लाम ऐसे, मगर मुझे किसी मुल्ला की इंटरफेरेंस नहीं चाहिए थी, मुझे खुद करना था। मैं खुद भी तो आखिर मुसलमान थी, मैंने कहा मुझे आना चाहिए, मुझे एक मुफ्ती की, क्योंकि एक मुफ्ती की चार जुबान, तो मैंने कहा मैंने मुफ्ती से नहीं करना, मैं खुद मुसलमान हूँ, मुझे अपने दीन के बारे में पता होना चाहिए। तो जब मैंने ये रास्ता थामा तो पता चला कि भाई तू तो रास्ते से ही निकल रही है। रात को बैठ के कहती थी अल्लाह मुझे रास्ता दिखा, ये कहती थी एम्बर कि अल्लाह मुझे रास्ता दिखा, मुझे सच्चाई दिखा। सच्चाई के पीछे गई थी मैं, एंड आई एंडेड अप लीविंग इस्लाम। इट वाज नेवर द प्लान, ये कभी मेरा सोच तक नहीं था, मगर हाँ दरमियान में मैंने देखा कि मेरा डायरेक्शन बदल रहा है, तो वो मुझे परेशान करता गया। मैं बोलती गई अल्लाह मुझे रास्ता दिखाओ, अल्लाह मुझे रास्ता दिखाओ, बिकॉज आई कुड फील द फियर, कंफ्यूजिंग, कि ये रास्ता ये तो बदल गया पूरा। तो आखिर में यही हुआ कि मैं हट गई। अभी आप क्या मानती हैं, आपका फेथ क्या है, क्या प्रैक्टिस करती हैं, कौन सा धर्म प्रैक्टिस करती हैं? मैं आज इंसानियत को मानती हूँ, ह्यूमैनिटी और स्पिरिचुअलिटी, बहुत ज़्यादा इन दो में हूँ मैं, और किसी खुदा को नहीं मानती, बट आई डू अंडरस्टैंड देयर इज अ क्रिएटर एंड क्रिएटर्स, देयर आर मैनी नॉट वन, मगर मैं उनको नाम क्यों नहीं देना चाहती, क्योंकि उनको मैंने देखा नहीं है, बट आई डू बिलीव देयर आर सम पावरफुल क्रीचर्स, कोई है ऊपर जो कि कंट्रोल कर रहा है 100%, बट आई डोंट बिलीव इन वन, देयर आर मैनी। और मैंने थोड़ा सा भी नोट किया कि आई एम इनटू कॉम्बिनेशन ऑफ बुद्धिज्म एंड चंद चीजें, few things from Sanatan. So there are things I like, you know, meditation, योग, rebirth, karma. इस karma में तो मैं बहुत बिलीव करती हूँ। इसी के साथ आज की मजदूरी यहीं खत्म करते हैं। अगर तुम्हें वीडियो पसंद आई तो लाइक मारो, लाइक मारो, और अगर तुम लोग नए हो तो सब्सक्राइब करो। वो जो लाल वाला बटन है उस पर फूट फेंक के मारो या फिर मोमबत्ती, मुझे नहीं पता, बस क्लिक हो जाना चाहिए।